کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے۔ سینٹ الیکشنز میں بولیاں لگتی ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ پروونشل اسمبلیز کے ریٹس لگتے ہیں، پیسہ اوپر تک جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پیسہ آفر ہوئے ہیں سینٹ الیکشن میں۔ ہم یہ بل پریزنٹ کریں گے تاکہ ساری قوم کے سامنے سب کو پتا ہو کہ کون اس ملک میں کوشش کر رہا ہے کرپشن ختم کرنے کی، اور کون اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں کرپشن کو بچا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ حکومت کی جانب سے براڈ شیٹ سکینڈل میں ایک رکنی کمیشن کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید اس ایک رکنی کمیشن کے سربراہ ہوں گے اور ان کے پاس اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی محکمے سے ہر طرح کی مدد کو حاصل کر سکیں گے۔ یہ کمیشن 6 ہفتوں کے اندر اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو براڈ شیٹ اور IAR کے انتخاب، تقرری اور معاہدوں کے حوالے سے تمام تفصیلات کا جائزہ بھی لے گا۔ اپوزیشن کے لیے پریشانی کا اس نوٹیفکیشن میں سب سے بڑا سبب یہ ہے جو اس نوٹیفکیشن کا کلاز G اور H ہے۔ G کلاز جو ہے اس نوٹیفکیشن کا اور TORs کا، وہ یہ کہتا ہے کہ 1990 کے بعد کے جو کیسز ہیں ان کو بھی پروب کیا جا سکے گا اور جائزہ لیا جا سکے گا کہ ان پروبس کو یا ان انویسٹیگیشنز کو کس نے سکٹل کیا، کس نے نہیں ہونے دیا، باہر جو پلنڈر بنی تھی وہ واپس آ رہی تھی ریکوری ہونے کے بعد، تو وہ اس رقم کو کس نے روکا، اس طرح کی تحقیقات بھی ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز ہو یا سوئس بینکس ہو یا جو نواز شریف فیملی کے وہاں پہ فلیٹس ہیں لندن میں، ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے گا۔ تو ایک طرح سے حکومت نے اپنا مائنڈ سیٹ پہلے ہی سب کے سامنے ظاہر کر دیا ہوا ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی ہمارے شو میں ابھی آپ نے شارٹ بھی سنا، اس میں بھی کہہ چکے ہیں کہ پاناما 2 بننے جا رہا ہے براڈ شیٹ سکینڈل اپوزیشن کے لیے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ براڈ شیٹ سکینڈل کے تھرو جو ہے وہ اپوزیشن کو اب دبایا جائے گا اور ان کے جو سکینڈلز ہیں وہ منظر عام پر لائے جائیں گے۔ حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے، سوئس بینکس کے حوالے سے تفصیلات ایک دفعہ پھر پبلک ڈومین میں لائی جائیں گی اور پھر وہ جو پریشر ہے وہ اپوزیشن پر ایگزرٹ ہو سکے گا، وہ مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان پر خاصا پریشر آئے گا۔ اور جو منترا ہے PTI کا کہ جی باقی تمام جماعتیں ان کے علاوہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں، اس کو خاصی تقویت مل سکے گی اگر براڈ شیٹ سکینڈل تحقیقات کو آگے بڑھاتا ہے اور اس میں اپوزیشن کو نامزد کرتا ہے، ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ حکومت جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید کے نام پر اتنی مصر کیوں ہے، اس میں خاصی زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ سندھ بار نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار کونسل، ان کی جانب سے بھی ان کی تعیناتی اور ان کی تقرری پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کسی بھی طرح سے اس کمیشن کی سربراہی کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ جسٹس عظمت سعید صاحب وہ آدمی ہیں جنہوں نے JIT بنوائی تھی پاناما کیس میں، اور انہوں نے وہ تمام نام دیے تھے جو JIT کا حصہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو مشہور زمانہ واٹس ایپ JIT ہے وہ انہی کی وجہ سے بنائی گئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کافی سارے شواہد موجود ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں، بہت سارے حقائق ہیں جو ہم عوام کے سامنے رکھیں گے تو حکومت کو بھی امبیرسمنٹ ہوگی اور جسٹس ریٹائر عظمت سعید صاحب کو بھی امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ وہ خود سے وڈرا کر جائیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ کے حوالے سے وہ آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اور وہ آئینی ترمیم کو منظور بھی کروائیں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سینٹ کے انتخابات میں پیسہ چلتا ہے اور ان کو بھی پیسوں کی آفر ہوئی ہے، اور ابھی کچھ لیڈرز ایسے بھی ہیں جنہوں نے خریداری بھی سینٹ کے حوالے سے شروع کر دی ہے۔ انہوں نے MPs کو اور MNs کو خریدنا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی تھیری دی ہے، یہ نیریٹو دینے کی کوشش کی ہے کہ کون بندہ ہے جو سینٹ انتخابات میں، یہ کون سی پارٹی جو سینٹ انتخابات میں ان کا ساتھ دیتی ہیں اور اس آئینی ترمیم کا ساتھ دیتی ہیں جس کے مطابق اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سینیٹرز کا انتخاب کیا جا سکے گا۔ انہوں نے کہا یہ دیکھنا ہوگا عوام کو کہ کون کرپشن کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہے جو کرپشن کے مخالف ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے گا، اس کو سپورٹ کرے گا، وہ کرپشن کے خلاف ہوگا، اور جو اس کو اپوز کرے گا وہ کرپشن کے حق میں ہوگا۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی اوپن بیلٹنگ کی بات کرتی رہی ہیں اور ٹرانسپیرنسی لانے کی بات کرتی نہیں ہیں کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन अब वो मुखालफत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी उजलत में जो पीटीआई आईनी तरमीम लेकर आ रही है वो किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है, और उनको खदशा है कि उनके एमपीएस और एमएनएस उनको वोट नहीं देंगे, चूंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनका रवैया उनके पार्लियामेंटेरियंस के साथ अच्छा नहीं है। तो इसलिए उनका कहना यह है कि पीटीआई की जानिब से और हुकूमत की जानिब से आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा जा रहा है। तो इसलिए अपोजिशन कह रही है कि हम किसी भी तरह से ये आईनी तरमीम मंजूर नहीं होने देंगे। 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। हुकूमत के पास वो अक्सरियत मौजूद नहीं है, बल्कि अब तो नेशनल असम्बली में भी उनके पास मुश्किल से सादा अक्सरियत है, चूंकि अख्तर मैंगल साहब की पार्टी ने कोलिशन से विड्रॉ कर लिया था, तो अब उनके पास 172 वोट्स हैं हुकूमत के पास, और सेनेट में ऑलरेडी अपोजिशन की अक्सरियत है 62 मेंबर्स हैं आउट ऑफ 104। तो सेनेट में ऑलरेडी अपोजिशन अक्सरियत में है, तो हुकूमत के लिए खासी मुश्किल होगी इस आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए। दूसरी तरफ उनका एक रेफरेंस मौजूद है हुकूमत का, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लॉयर्स, कुछ कानून साज ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस मौजूद है तो आईनी तरमीम लाई जा सकती है या नहीं। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ आज बड़ा जबरदस्त पैनल मौजूद है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा रियाज फतियाना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा सहर कामरान साहिबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, और मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर गौस न्याजी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर गौस न्याजी साहब, मैं आपसे शुरू कर लेता हूं। हुकूमत ने एक रुकनी कमीशन ब्रॉडशीट स्कैंडल में जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में बना दी है। अब आपको इस पर एतराज क्या है और अब आपके पास ऑप्शन क्या है? देखें जी, अजमत सईद साहब बने या जो कोई बने, कुछ अखलाकियात होती हैं हर चीज का, और कोई एक कोर्ट्स की रिवायात होती हैं। माजी में हमेशा ये देखा गया है कि अगर कोई जज के सामने कोई ऐसा केस पेश होता था या होता है, और फिर वो अगर वो जब वो जज वकील होता या वकील था, क्योंकि पहले वकील फिर प्रमोट होकर जज बनते हैं या सिलेक्शन होती है उनकी, तो वो कहते हैं कि उस बैंक से अलहदा हो जाते हैं, क्योंकि उनका ये वर्जन होता है कि मैं इस केस में फलां का वकील रहा हूँ, तो वो केस छोड़ देते हैं। तो उसमें लेकिन इसमें ये क्या है कि आप तो क्योंकि खान साहब का मकसद कोई यही है कि असल मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाई जाए, और फिर ऐसे वो शोशे छोड़ते रहते हैं। मतलब अजमत सईद साहब क्या कर लेंगे? कुछ पहले तो ये डिस्कस करना चाहिए कि जो उन्होंने जो कमीशन बनाया रिटायर्ड जज की निकल, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। इससे पहले भी कमीशन बना चुके हैं, चीनी सिकंदर और वो साहब, ये इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन बने, इसकी कानूनी हैसियत तो बिल्कुल मौजूद है और इसको सारे एडमिट भी कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून को अगर बुलाया जाता है इस कमीशन में, मुस्लिम लीग नून जाएगी? नहीं, मुस्लिम लीग तो अपना वर्जन दे दिया है कि हम इसको नहीं जाएंगे और उसका बाईकाट करेंगे, और ये हमारा कानूनी हक है। अखलाकी तौर पर अजमत सईद साहब को ये जुर्रत करनी चाहिए कि उसको इस कमीशन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही है, चले ठीक हो। क्योंकि ब्राड शीट के उससे आप तो ब्राड शीट की बात कर रहे हैं, पहले प्रोसिक्यूटर रहे हैं, और फिर इसमें ये उसी केस में नैब के केस में ये नैब को कैसे डिफेंड करें, अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे? अब ये नैब की नालायकी है, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी वजह से जो है $28 मिलियन पाकिस्तान को पे करने पड़े, और वो भी खिलाफ कानून, और उसमें FIR नोटिस इनको दे रहा है कि जी इसमें तो टेस्ट करना था, आपने वो भी नहीं काटा। यानी कि इतनी जल्दी में इन्होंने ये केस किया है कि केस का फैसला बाद में आया, और ये इन्होंने पैसे वहां पहले शिफ्ट कर दिए, और फिर वहां किक्स पैस ये जो है शहजाद अकबर और मौसवी ने ये बयान दिया है कि शहजाद अकबर जो है वो इशारा किया कि मेरे से किक्स पैस मांगता है कि जो पैसे नहीं उससे मुझे अपना हिस्सा दो। तो ये कैसा एक ड्रामा बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। फतियाना साहब का वर्जन जान लेते हैं। फतियाना साहब, आपकी सुई, हुकूमत की सुई क्यों जस्टिस अजमत सईद साहब पर फंसी हुई है? आपको पूरे पाकिस्तान में एक ही ईमानदार जज नजर आते हैं, वो भी रिटायर्ड है। देखें, आज तक कोई मिसकंडक्ट या करप्शन या बेज़ाब्तगी का इल्जाम नहीं लगा जस्टिस अजमत सईद साहब पर। वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, बहुत कादावर शख्सियत हैं, इंतहाई लॉ नोइंग हैं, इंतहाई तजर्बेकार हैं, और हुकूमत ने इनको अगर नामजद किया है, आगे बात बढ़ी है, तो मेरे ख्याल जिसको भी हुकूमत नामजद करती है उसी को उस पर इख्तलाफ होना था। अजमत सईद साहब की जगह और नाम दे देते,
जैसे आसिफ सईद खोसा साहब का नाम ले लेते थे, उन पे भी इनको इतराज होना था, क्योंकि इन्हें तो हर उस बात पर इतराज है जिसका फैसला हुकूमत करती है। वो कह रहे हैं मेरा ख्याल है सुप्रीम कि- कोर्ट के जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनमें से किसी पर मुश्तमिल कमीशन बना दिया जाए, कमेटी बना दी जाए। जी, जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज उसके मेंबर हों, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कम इन चीजों में उलझा दें तो फिर अवाम का क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि इन इश्यूज पे अलग रखा जाए और वो जो रेगुलर केसेस हैं उनकी समाअत करे। इसलिए शेख अजमत सईद साहब के नाम पे इनको इत्तफा करना चाहिए। जज कभी गलत फैसला नहीं करता, जज जज ही होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनका एहतराम है। मेरा ख्याल ये तक बहाना साजी है। ऐसा इशू ये है कि ब्रॉडशीट का इशू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे इन्हें चाहिए कि मुकदमा का सारी इंक्वायरी का सामना बिल्कुल ठीक। करें। मेरा ख्याल इसमें हर चले, बिल्कुल ठीक हो गया। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सहर कामरान साहिबा, हुकूमत की जानिब से जस्टिस अजमत सईद साहब को अब कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी को क्या एतराजात हैं उन पर और आपके लिए ये एक्सेप्टेबल है? शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, बात यह है कि वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है और जाहिर बात है कि एक शख्स जो खुद डिप्टी प्रोसिक्यूटर रहा हो जिस टाइम पे ये एग्रीमेंट साइन हुआ, उसको आप बना दे उसी आपने उन्हीं को निगरानी पे बना दिया कि वो इन्वेस्टिगेट करें, तो क्या वो अपने खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे? तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो एक सबके लिए काबिल फहम बात है कि उनकी शख्सियत और जिस तरीके से वो खुद जो है वो शौकत खानम मेमोरियल बोर्ड के भी उसके भी बोर्ड पे भी है, तो उसमें मैं नहीं समझती कि इस तरह की मुतनाज़ा शख्सियत को इस किस्म की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सहर साहिबा, ये बताइए कि आपको हुकूमत इतनी मुसर क्यों नजर आती है उनके नाम पर? सॉरी, क्या नजर आती है? हुकूमत इतनी ज्यादा बाजिद नजर क्यों आती है, मुसर क्यों जस्टिस अजमत सईद साहब के नाम पर नजर आती है? आपको इस हुकूमत की कारकर्दगी और तरीकेकार अभी तक पता नहीं चला? आपको ये पता नहीं चला कि नैब के चेयरमैन जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस है? आपको ये नहीं पता कि उनका वीडियो स्कैंडल जो है वो अभी तक इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है, जो आप ही के चैनल पे सरफेस हुआ था? क्या आपको ये नहीं पता कि केपी के अंदर जो है वो एहतसाब का इदारा खत्म कर दिया गया था? क्या आपको ये नहीं पता कि ये हुकूमत जो है इमरान खान अहमद न्यासी साहब उसकी बुनियादें झूठ पर है? क्या आपने कोई एक ऐसी चीज देखी है जो उन्होंने कही और वो सच साबित हुई हो? और क्या आपने कोई करप्शन की कार्रवाई हुकूमती अरकान के खिलाफ देखी है? तो आपको पता लग जाएगा कि जी यहाँ पर जो है जो एक खास किस्म के रिसोर्सेज जो हुकूमती है, जो मनसब है, वो इस्तेमाल किया जा रहा है, सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है अपोजिशन के खिलाफ। तो आपको लगता है ये कमीशन भी बुनियादी तौर पर अपोजिशन को फंसाने के लिए बनाया जा रहा है और इसीलिए जस्टिस अजमत सईद साहब का नाम हुकूमत विड्रॉ करने के लिए तैयार नहीं है? बात यह है कि हुकूमत खुद को एनआरओ दे रही है, हुकूमत नैब को एनआरओ दे रही है और हुकूमत ब्रॉडशीट की गलत एग्रीमेंट को एनआरओ दे रही है और जिस तरीके से रकम दे दी गई और विद होल्डिंग टैक्स भी नहीं काटा गया। यानी आप ये देखें ना कि ये बता दें कि उस पर कितना कट था जो जुर्माना अदा किया गया, तो इन सबको एनआरओ दे रही है। बिल्कुल ठीक है। ये इमरान खान अहमद न्यासी साहब खुद एनआरओ पे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं दोबारा आता हूँ सहर साहिबा आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, मुझे ये फरमाइएगा कि आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, अपोजिशन की पार्टियों को फंसाने की कोशिश की जा रही है इस कमीशन के जरिए? जी बिल्कुल, फंसाने की एक कोशिश की जा रही है और इस ब्रॉडशीट में से एक कोई इकामत तलाश करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी ये है कि हुकूमत का ये भी मकसद है कि जो असल मसाइल हैं आवाम के, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो जिस तरह के रेट्स बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, डीजल के, बिजली के, और हुकूमत के अरकान के खिलाफ जितनी कोई इंक्वायरियाँ हो रही हैं, जिस तरह की लूट मार हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है जो आई है, इन चीज़ों से जो है वो ताकि अवाम की तवज्जो न जाए और अवाम की तवज्जो को किसी अपोजिशन की तरफ मबसूस करा जाए कि अपोजिशन करप्ट है। हमेशा हुकूमत की यही कोशिश रही है, शुरू से 2.5 साल हो गए कि अपोजिशन करप्ट है और अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश करे। और फिर इतनी झूठ और रिटाई के झूठ बोलते हैं कि देखो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट शेयर की, तो इनको चाहिए था कि उसको तस्लीम करते कि जी हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पहले तो इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। मजाक कैसे उड़ाया? वजह का केस मसलन शहबाज गिल ने कहा
کہ جی یہ تو ایک انگریزی میں جب اردو میں ٹرانسلیشن ہوگا تو اس پر پتہ چلے گا. اور پھر یہی چیز مطلب انتہا ہے ایک چیز کی کہ پرائم منسٹر نے اسی چیز کو ریپیٹ کیا اور پھر نیکسٹ ڈے کہا کہ مجھے تو میں نے رپورٹ پڑھی نہیں ہے. اور پھر آخر دیکھیں جو آج تو اس ادارے نے جس نے یہ سارا سروے کیا ہے اس کو یہ سٹیٹمنٹ دینے پڑی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. نیاز صاحب مجھے یہ بتائیے مریم نواز صاحبہ جو یہ بات کر رہی ہیں کہ جسٹس سعید عظمت صاحب کو خود وڈرا ہو جانا چاہیے اس کمیشن کی سربراہی سے، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ہمارے پاس کچھ شواہد موجود ہیں جو ہم منظر عام پر لائیں گے، عوام کے سامنے رکھیں گے. وہ کیا شواہد ہیں؟ وہ ایک تو وہ واٹس ایپ جو جس پہ میسج آتی تھی اور جس واٹس ایپ پہ عظمت سعید صاحب نے جو تینوں تھے ایجنسیز کے بندے شامل کیے تھے کہ ایف آئی سے فلاں بندے کو ڈالیں، آئی بی سے فلاں بندے کو ڈالیں اس کے بندوں، اور یہ چیز سارے ریکارڈ پہ ہے. اور اس پہ اس کے علاوہ بھی دیکھو ایک مجھے تو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ جس طرح کی ایک ویڈیو ارشد ملک کی ایک بعد میں ملی تھی اس قسم کی اور چیزوں بھی ہوں تو میں اس پہ بات کمیٹ نہیں کر سکتا. آپ کہہ رہے ہیں جسٹس عظمت سعید صاحب کی بھی ویڈیو ہو سکتی ہے؟ نہیں وہ تو پھر کسی کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ حقیقت ہے. اس کے علاوہ بہت سارے مسلم لیگ نون والوں کو تو اب کوئی ویڈیو کی دکان بنا لینی چاہیے. نیاز صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. نیاز فتحانہ صاحب، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کے حوالے سے ان کے پاس کافی ثبوت ہیں، شواہد ہیں جن کے مطابق پاناما میں ان کو اور ان کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا، مسلم لیگ نون کو ٹارگٹ کیا گیا. تو وہ شواہد منظر عام پر آتے ہیں تو حکومت کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہو سکتی ہے. آواز آ رہی شاید؟ جی فتحانہ صاحب سن سکتا ہوں میں. آپ گزارش ہے کہ میں بہت احترام کرتا ہوں جس ہمارے غوث نیازی صاحب کا جو ہمارے سینیٹر بھی ہیں اور سہار کامران صاحبہ کا بھی جو ماشاءاللہ بڑے دونوں مستند لیڈر ہیں اپنی اپنی جماعت کے. میرا خیال ہے کہ انہیں حوصلہ کرنا چاہیے اور ہر حکومتی اقدام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہم تو اس ملک میں احتساب کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں اور عوام نے ہمیں چنا اس لیے ہے کہ ہم احتساب کریں، اور اس سلسلے میں وہ احتساب پی ٹی آئی کے اندر ہو، حکومت کے اندر ہو یا باہر ہو، سب کے لیے ایک جیسا ہے. اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ انہیں جج کوئی بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، کب ان کو روکا ہے ہم نے کہ ثبوت عوام کے سامنے پیش نہ کریں؟ اگر ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹری مووی ہے، کوئی ویڈیو ہے، کوئی انہوں نے کوئی آڈیو ٹیپ کی ہوئی ہے تو اس کو بالکل قوم کے سامنے پیش کریں، پریس کانفرنس کر کے کریں. عدالتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انہیں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن اگر صرف میڈیا پہ بیٹھ کے اور پریس کانفرنس کی شکل میں اور تقریر کی شکل میں کہتے ہیں کہ تو میرا خیال یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں قوم کو آگے لے کر آنا ہے، ایسا کلچر پیدا کرنا ہے کہ یہاں سب کا احتساب ہو سکے. ملک جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. وقت آ گیا ہے کہ تمام اچھے دوست ہمارے دونوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کنفرنٹ کر رہے ہیں میری بات کو اور اپنی جماعتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. انہیں بھی چاہیے کہ اس معاملے میں ہمیں سپورٹ کریں، اپنی جماعتوں سے بھی کہیں کہ ہر بات میں اپوزیشن بھی مناسب وہ نہیں تو ہوتی. سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں فتحانہ صاحب. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کا نام وڈرا کر لیں. کسی بھی اور جج کو جس کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے بارے میں لوگ جانتے ہوں یا کسی کو اعتراض نہ ہو اس کو اپائنٹ کر دیں آپ. تو انہیں چاہیے نا کہ ان کے خلاف ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پیش کر دیں. کورٹ میں جانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایویڈنسز ہیں جن کے مطابق ان کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا، پاناما میں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جے آئی ٹی انہوں نے بنوائی. اس طرح کے ہیں بہت سارے شواہد ان کے پاس، وہ تو کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں نا اس پہ کوئی ڈاکومنٹری پروف تو ان کے پاس نہیں ہے نا. صرف لوگوں نے فیصلہ کیا. فتحانہ صاحب سندھ بار کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار نے بھی کہہ دیا ہے، اور پھر پاکستان بار کونسل کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا جسٹس عظمت سعید صاحب کے نام پر. تو یہ کافی جگہوں سے اعتراضات آ رہے ہیں، ریزرویشن سامنے آ رہی ہیں. آپ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ ان کا نام وڈرا کر کے کسی اور جج کو اپائنٹ کرے. انہیں چاہیے کہ اس کے سلسلے میں اپنا کسی کورٹ میں جا کر دروازہ کھٹکھٹائیں. اگر کورٹ ان کے حق میں فیصلہ کرتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر کورٹ
जस्टिस अजमत सईद की क्रेडिबिलिटी पे इतमाद करती है तो फिर मेरे ख्याल इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप इससे पहले आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन में जज जाते थे, उन पर भी इतराज होता था, अदालतों में फैसले करते हैं उन पर भी इतराज होता है। बिल्कुल ठीक है, जो जज बिल्कुल इनके ठीक हक हो में गया। फैसला करते हैं, वो इनको पसंद है, जो जज बिल्कुल ठीक है। जो सही फैसला करे वो इनको पसंद नहीं है। बिल्कुल ठीक। वरना ये तो ऐसे जज चाहते हैं, जो आपको याद होगा कई ऐसी ऑडियो भी आई थी जिसमें एक पंजाब के मोहतरम जज साहब शहबाज शरीफ साहब से हदायत ले रहे थे कितनी सजा करनी है। जी बिल्कुल इस किस्म ठीक के है। जज तो नहीं, हमें आगे की तरफ उस किस्म बढ़ना के है। जज नहीं, हम चाहते हैं वो कह रहे हैं, ऐसे जज अपोजिशन ये कह रही है कि जस्टिस अजमत सईद साहब आपके जस्टिस कयूम है। आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूं, सहर कामरान साहिबा, वो कह रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए अगर आपको जस्टिस अजमत सईद साहब पर किसी तरह का एतराज है। बात ये ततियाना साहब बहुत मासूमाना बातें कर रहे हैं। ये यानी अगर आपको करप्शन के खिलाफ इतनी ही बड़ी कार्रवाई करनी है तो आपने केपी के अंदर एहतसाब के दायरे को ताले क्यों लगाए? आपकी बीआरटी के ऊपर क्यों पेशरफ नहीं हुई? मैं कहती हूँ आप कब छोड़ दें, एक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने से पता लग जाएगा कि करप्शन की जड़ें कहाँ से मिलती है। और खुद अभी पटियाला साहब ने जो बात की, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ, जो मैं समझती हूँ उनकी बात का महफूम, कि हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम जो है कॉम्प्रोमाइज है। मुझे ये बताएं कि ये क्यों इस किस्म के एक के बाद इनको इंतकामी कार्रवाई के लिए कोई ऐसा फोरम चाहिए होता है? ये जो आवाम का इतना पैसा आया हुआ, ये जो इतनी रकम दी गई टैक्सपेयर की, उसका कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं? या इसी किस्म के कमीशन बनेंगे? कमीशन तो चीनी चोरी का भी बना था, उसका क्या हुआ? आटा चोरी के का क्या हुआ? अभी तो सुना है कि जहांगीर करीम साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी इलेक्शन के टिकट पे सेनेट बन रहा। देखिए बात यह है, आपने तो हर इंसान को अपने परों में छुपा के रखा है। बिल्कुल ठीक है, आपकी सफों में शामिल है। तो आप करप्शन की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते जब आप जो है वो हर करप्ट प्रैक्टिस और खुद कब्जा करके अपना घर रेगुलराइज कराते हैं 12 लाख दे के। तो बात ये कि करप्ट प्रैक्टिस आपको तो देखिए अदिया के करप्शन क्या नहीं था इनके बिल्कुल साथ, ठीक। बिजली का करप्शन अली जैदी साहब इनके साथ बैठे हैं, पेट्रोलिंग के मिनिस्टर के साथ बैठे। तो बाकी करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ अपने एक्शन क्या लिया है? करप्शन को तो आप हार्बर कर रहे हैं। आपकी फंडिंग भी बड़ी लॉन्ड्रिंग की है, आपकी फंडिंग भी फ्रॉड की है, आपके ताने बाने ही। बिल्कुल ठीक है, फॉरेन फंडिंग का केस इनका फैसला होना चाहिए, आना चाहिए, उसमें काफी ज्यादा ताखीर होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, सेनेट इंतखाबात के हवाले से, ओपन वोटिंग के हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है कि वो आईनी तरमीम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर गौस नियाज़ साहब, मुझे ये बताइए, सेनेट के हवाले से, सेनेट इंतखाबात के हवाले से ओपन बैलेटिंग की फेवर में रहे आप भी और पीपल्स पार्टी भी, अब क्यों मुखालफत कर रहे हैं? अब भी तो शो ऑफ हैंड्स के लिए आपको हुकूमत की सपोर्ट करनी चाहिए। देखिए जी, ये सेनेट इलेक्शन के 2 पोर्शन है। एक है जिसमें जो सेनेटर इलेक्ट होता है और दूसरा है कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का इलेक्शन। अब जो तरीकाकार है इलेक्शन का, जो सेनेट का, उसमें जो तरीका ये होता है कि उसमें जो एमपी होता है जिस भी सूबे का हो, चाहे पंजाब का, सिंध का, केपी के, फेडरल का हो, फेडरल का एमएनए हो, तो वो एक प्रायोरिटी करता है कि प्रायोरिटी 1 पे फलां, 2 पे फलां, 3 पे 7 तक होता है। तो आप कैसे करेंगे? एक एमपी को अगर आप ओपन बैलेटिंग करते हैं तो आप कैसे 7 दफा एक एमपी से पूछेंगे कि आपकी प्रायोरिटी क्या है? मतलब एक चीज नाकाबिल अमल है, जिसको ये कह रहे हैं कि जी हम जहां करप्शन, तो माजी में आप इसकी हिमायत क्यों करते रहे हैं? उसके लिए फिर तो पूरा तरीके कार बदलना होगा। आईनी तरमीम, उसमें बहुत सारी डेलिब्रेशन चाहिए, उसमें कई पहलू देख रहे होंगे। उसके लिए तो आप देखो, इलेक्शन शेड्यूल आने में कोई हफ्ता या 10 मैक्सिमम 10 दिन रह गए, तो हफ्ता 10 दिन में क्या यानी तरमीम पास हो सकती है? क्या उसमें ना उनके पास अक्सरियत है? ये सारा मैंने कहा कि असल ये चीज ऐसे शोरशे छोड़ते हैं। और फिर खान साहब कह रहे थे कि जी मुझे पता है कि जी 5 करोड़ में एक वोट बिका और 5 और 10 करोड़ दिए गए। तो वो कौन थे जो 10 करोड़ दिए? वो खान साहब के एमपी थे, केपी के, जो पकड़े गए थे, जो जिसको खान साहब को पता। फिर खान साहब ने उसको निकाला और जिनके बगैर गुजारा नहीं होता था उनको वापस ले लिया था। तो ये करप्शन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे किसी एमपीए ने
पंजाब नहीं में सारी मालिक जमातों साहब, के पंजाब- न्याजी साहब माजी में एमपीएस बिकते रहे हैं, आपके भी केपीके में एमपीएस बिकते रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ भी ये होता रहा, बल्कि पीपल्स पार्टी हमारा- ने तो प्रीवियस इलेक्शंस में एक सीट ज्यादा ली थी और इन पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस हैं कि इन्होंने भी वोट खरीदे थे। खैर मुझे ये बताएं कि अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ ये देखना है आईनी तरमीम के जरिए कि कौन करप्शन के साथ खड़ा है और कौन इसकी मुखालफत में खड़ा हुआ। हाँ, बस वो यही चाहते हैं कि अपोजिशन मुखालफत करे और फिर मैं अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग करूं कि देखो जी मैं तो करप्शन खत्म करना चाहता हूँ, अपोजिशन नहीं चाहती। हालांकि ये चीज ना इस पे ना कितना इनके पास टाइम है उसमें तरमीम कर सकें ना। देखो ये जब तक अपोजिशन को साथ नहीं मिलाएंगे या अपोजिशन से बात नहीं करेंगे तो ये कैसे तरमीम पास होगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ, सहर कामरान तो- बिल्कुल ठीक हो गया रह साहब, आपका पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया। सहर कामरान साहिबा, अगर आप आईनी तरमीम को मुस्तरद करेंगे और उसकी मुखालफत करेंगे तो आप करप्शन में इन्वॉल्व हैं और करप्शन की सपोर्ट कर रहे हैं। इमरान खान साहब की और पीटीआई की थीरी यही है। बात ये इमरान खान साहब की बात से क्या कोई यकीन करता है? मुझे बताएं कि क्या जो है उनकी कौन सी बात पूरी हुई? क्या आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी नजर आ गई, गवर्नर हाउस में लाइब्रेरी, 1 करोड़ लोगों को ये 50 लाख घर बन गए? देखिए बात ये है, इमरान खान अहमद न्याजी साहब की जो नजरिया है वो झूठ है। उन्होंने सवेरे एक झूठा नैरेटिव रोज उठाना है और बात यह है कि इनको क्यों इस बात का खौफ है कि इनके एमपीएस, इनके एमएनए इनको वोट नहीं देंगे। ये जो 50-50 करोड़ रिश्वतें दे रहे हैं, यानी वो भी अपनी नफी कर रहे हैं पुरानी बातों की, तो क्यों दे रहे हैं? किस बात से ये खाइफ है? क्यों इनको अब जो है वो एमएनए एमपीएस याद आ रहे हैं? जो इनकी अपनी कारकर्दगी है, आप ये देखें, चाहे इनके मेंबर पंजाब में हो या PS 52 में हारने वाले इत्तेहादी सिंध में हो, वो अपनी शिकस्त का, नाकस कारकर्दगी का। आप ये कह रही हैं पार्टी कि के ओपन बैलेटिंग के हवाले से आईनी तरमीम हुकूमत इसलिए ला रही है चूंकि इनको खदशा है कि इनके एमपीएस, इनके सेनेटर्स को वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे, वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। आप ये बताएं कि जिस हुकूमत की कारकर्दगी ये रही हो कि गुर्बत और महंगाई में इजाफा हो, जिसकी कारकर्दगी ये रही हो कि उससे इंतजामी अमूर ना संभल रहे हो, जहां जिसके पास अपनी जमीनें छुड़ाने और अपने कब्जे छुड़ाने के लिए हो, जिसकी जो है वो पूरी जो एक निसार हो वो सिर्फ विंडिक्टिवनेस पे हो, जो अपने एमपी एमएलए को जो है नजरअंदाज करके इधर उधर से मुशीर जमा करे, उसके साथ कैसे जो है मेंबर्स चल सकते हैं जिन्होंने कल को अपने जाके अच्छा वोट लेने हैं। सहर साहब, इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उनको पता है कि एक लीडर हैं जिन्होंने खरीदारी शुरू भी कर दी है। उनका इशारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ था, तो आपने खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है क्या? जी इमरान खान अहमद न्याजी साहब, आप जो है ना बहुत नर्वस है। आप इससे बेहतर ये था कि आपको कदर होती अपने मेंबर्स की, लेकिन उनको कैसे कदर होती? बिल्कुल जो सही। सिलेक्टेड है उनको जो ट्रेन में रख के मिल गया, उनको क्यों कदर करते हो? बिल्कुल उनकी सही। रौनक, उनकी फिरौनियत ने उनको इस बात की को मौका ही नहीं दिया कि वो ये देखें कि जो ये मेंबर्स हैं इनका कोई किरदार है। तो देखिए बात यह है कि खरीदारी आप कर रहे हैं, 50-50 करोड़ की बोली आप लगा रहे हैं, रिश्वतें आप बांट रहे हैं, और आपके पुराने बयानात के तनाजुर में देखा जाए तो बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाती है कि आप ये बिल्कुल ठीक पूरी है। आपको एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन थी कि वोट कैसे खरीदने हैं और उसी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। फतियाना साहब, 2/3 अक्सरियत चाहिए आईनी तरमीम पास करवाने के लिए, तो 2/3 अक्सरियत आपके पास है? शायद मितला साहब, गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून व इंसाफ की मीटिंग हुई है, जिसको मैंने खुद चेयर किया है। उसमें ये गवर्नमेंट का बिल डिस्कस हुआ। पीपल्स पार्टी के 3 वोट थे, उन्होंने इसकी मुखालफत में वोट दिया, और पीटीआई के 6 लोग थे, उन्होंने इसके हक में वोट दिया, और कसर राय से ये बिल स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया। उसमें JUI के आलिया कामरान साहबा और मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर उस्मान साहब भी मौजूद थे। उन्होंने अब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, ना हक में ना मुखालफत में। अच्छा, मुस्लिम लीग नून ने एब्सटेन किया है? जी, उसमें अब्सटेन किया। Interesting. JUI फजल रहमान ग्रुप ने भी अब्सटेन किया है, और ये सूरत हाल है। इसका मतलब अपोजिशन तो खुद डिवाइडेड है। उसमें अपोजिशन की 3 पार्टियां बड़ियों में से 2 ने तो इस पे नाक में वोट दिया, ना मुखालफत में दिया, सवाए पीपल्स पार्टी के। अब पीपल्स पार्टी का एजेंडा क्या है वो तो यही बता सकते हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पीटीआई के 23 अरकान असम्बली ने खैबर पख्तूनख्वा में लास्ट टाइम पैसे लेकर वोट गड़बड़ किए थे। तीनों सभी लोगों को इलेक्शन चयन पहले पीटीआई ने पार्टी से खारिज कर दिया था।
اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو. اب بھی کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ آپ کو یہی خدشہ ہے کہ آپ کے ایم پی ایز آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے، اور آپ کے جو منسٹرز ہیں یا دیگر جو آفس ہولڈرز ہیں ان کا رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ. دیکھیں اس سے یہ بھی تو پاسبل ہے نا، حکومتوں کو تو فائدہ ہوتا ہے سیکرٹ بیلٹ میں. اگر ہماری بدنیتی ہوتی ہے تو ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے سیکرٹ بیلٹ ہو. حکومت کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ منصوبے ہوتے ہیں، ایگزیکٹو سپورٹ ہوتی ہے. ووٹ کم اپوزیشن کے ہمیشہ ہوتے ہیں، سیکرٹ بیلٹ میں گورنمنٹ کے نہیں ہوتے. لیکن ہم تو پھر بھی لسٹ لے رہے ہیں اور ایسی بات نہیں کر رہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر اپوزیشن کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے. صرف پیپلز پارٹی پیچھے رہ گئی ہے، نون لیگ اور جے یو وائی تو پہلے ہی ڈبل مائنڈیڈ ہے. تو میرا خیال ہے وہ آپ کا دونوں جماعتیں ساتھ دے رہی ہیں. میں نہیں کہہ سکتا، لیکن انہوں نے مخالفت بھی نہیں کی. بالکل تو اس لیے میں چاہوں گا کہ انہیں چاہیے کہ اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہ کریں، ہمارا ساتھ دیں تاکہ کرپشن کا خاتمہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. ریاض فتحانہ صاحب، سحر کامران صاحبہ، ڈاکٹر غوث نیازی صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.